class 12th. Today on 10 May of Monday in English subject, firstly we discuss about the new syllabus of literature. So in our first part you will find out introduction section about the new syllabus, and the next part will be connect your test work which you have already done in Saturday, and today you will get solution of all those sentences. So let's start. According to new NCERT syllabus, your literature part is divided into three parts. First is Flamingo textbook as a prose, second is Flamingo textbook as a poetry, and the third section Vistas, yeah, that means supplementary reader. And in a prose section there are some lessons which you have to prepare for your board exam, and the first is the last lesson Alfonso Dode. First is the last lesson which is written by Alfonso Dode, and the second is Lost Spring Stories of Stolen Childhood, which is written by Anis Young. Pronunciation will be Young, not Jung. You will have to memorize it. And the third is Deep Water, written by William Douglas. Fourth is The Rat Trap, Salima Langerlof. And the next, number 5 is Indigo, Louise Fisher. And number 6, Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. And the number 7, The Interview, Christopher Sylvester. And the number 8, Going Places, A.R. Barton. So, in a prose section, there are total 8 lessons which we have to prepare, and the next section is related to your poetry part. And in a poetry, first poem belongs to My Mother at 66, My Mother at 66, which is composed by Kamla Das. Second is In Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. Third is Keeping Quiet, Pablo Neruda, which is composed by. And the fourth is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Number 5, A Roadside Stand, composed by Robert Frost. Number 6, Auntie Jennifer's Tigers at Drainey Ridge. So, students, in a poetry, there are 6 poems which you have to prepare. In a poetry, there are 6 poems. And next is supplementary reader. There are total 8 stories which we have to read and memorize also. First is the third level. The third level, which is written by Jack Finney. Second is The Tiger King, that is written by Kalki. Third is Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi, which is the writer of this story. And the fourth is The Enemy, Pearl as Buck. And the fifth, Should Wizard Hit Mom? Yeah, Mommy. John Updike, which is written it. And next is number 6, On the Face of It, Susan Heal is the writer of this story. And the number 7, Evans tries in O level. O level, 0 level, we can notice it. And it is written by Colin Dexter. And the number 8, Memories of Childhood, which is written by Gertrude Simons Bonin. So, students, as a supplementary reader, there are total 8 stories. So, you will have to read all the part of 3 sections. First is prose, second is poetry,
and third is supplementary reader. And in the next part, we will discuss the solution of our test work, which is based on narration. Firstly, I will see you a image of your literature book, so you will have to try to find out this book very soon. For this, you will have to able understand all the part very easily. Vidya publication book will be recommend you to purchase it, and in a image you can see first and the last page of this book. So see it and try to find out it very soon. Okay, and after that we are going to start the solution part of our previous work. As a test, you have already get first question, write your name, which is not needed to tell the solution. So we are going to start from second. Mohan said, let us play a match. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमें बताता है. रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमने देखा क्या दिया हुआ है, लेट अस प्ले अ मैच. तो लेट अस की कंडीशन आपको बताई थी कि लेट से आपको 3 कंडीशन मिल सकती हैं, लेट अस, लेट मी या लेट हिम. तो लेट अस के लिए आपको बताया था कि हम रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज करते हैं, सजेस्टेड में. लेट मी की कंडीशन में हम क्या चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में. और लेट हिम या कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फिर नाम क्या होता है तो हम वहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज़ करते हैं. तो आपने देखा यहाँ लेटस दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सजेस्टेड का यूज़ कर रहे हैं. और आपको ये भी बताया था कि जब लेटस की कंडीशन दी गई होगी तो हम वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करेंगे. उसके बाद प्रोनाउन या तो वी लेंगे या दे लेंगे, मैंने यहाँ वी लिया है. उसके बाद हम मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करेंगे. एक बेसिक रूल जो आपको मेमोराइज रखना है कि कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए उसके बाद जब हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले अ मैच. मोहन सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले ए मैच. तो इसका सही करेक्शन ये रहेगा. सेकेंड इज द संत सैड टू हिज प्यूपिल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली. फिर से वही हमें प्रोसेस अपनाना है. रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखेंगे, वही हमें बताएगा कि ये किस रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा. तो हमने देखा दिया है बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में की भी स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है, तो वो जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी. संत पीपल से कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है एडवाइज्ड की बात आ रही है. तो हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर दिया, एडवाइज्ड में. द संत एडवाइज्ड हिज प्यूपिल्स टू बी क्वाइट. यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड हमारा क्या आ गया है, टू कनेक्टिव वर्ड यूज हुआ है. टू बी क्वाइट एंड लिसन, लिसन टू, ये मी को हमने किस में चेंज कर दिया, हिम में चेंज कर दिया. क्यों, क्योंकि मी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो संत के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने हिम को यूज किया एंड देन केयरफुली. नेक्स्ट इज फोर्थ, आई विल कम टू योर प्लेस टुमारो, राम सेड. तो अब हमने यहाँ देखा आई विल कम टू योर प्लेस टुमारो, ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. असर्टिव है इसीलिए हमने आपको बताया था कि अगर सेड टू दिया है तो उसको टोल्ड में बदलिए, लेकिन अगर सेड दिया है तो उसको सेड में ही रहने दीजिए. तो हमने यहाँ क्या कर दिया है, राम सेड, कनेक्टिव वर्ड हमारा क्या यूज होता है, दैट. आई चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसीलिए राम को देखते हुए यहाँ पे प्रोनाउन किया गया ही. विल को कन्वर्ट कर दिया वुड में, ही वुड कम टू. योर दिया है, अब देखिए योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है. अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और रिपोर्टिंग स्पीच में हमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है. तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को एज्यूम करिए. फर्स्ट पर्सन में आपका आई आता है एज अ सिंगुलर, वी आता है एज अ प्लूरल. तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस है कि हम यहाँ तो मी लिखें पॉजिटिव केस में, या तो हम यहाँ माई लिखें या फिर
अवर लिखें। तो मैंने यहाँ अवर लिखा है, माई एंड अवर बोथ विल बी करेक्ट, इट इज योर चॉइस व्हाट विल यू राइट हियर। our place and tomorrow will be convert the next day. Number 5, I said to the guest, are you comfortable here? Are you comfortable here से पता लग गया ये हमारा इंट्रोगेटिव है। तो हमने क्या करा, said to को कन्वर्ट किस में कर दिया, asked में। I asked the guest, और जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ या वेदर में से किसी एक कनेक्टिव वर्ड को यूज़ करते हैं। तो इफ़ हमने यहाँ यूज़ किया एंड यू हमारा चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गेस्ट। अगर गेस्ट सिंगलर ही लिखा है इसीलिए हम ही ले रहे हैं। अगर सपोज दैट कि यहाँ गेस्ट्स होता तो हम यहाँ दे यूज़ करते हैं, ही। और फिर प्रेजेंट में ही वॉज कंफर्टेबल, हेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया देयर में, ही वॉज कंफर्टेबल देयर। Next is number 6. The teacher said, I do not wish to see any of you go away. अब देखिए इसमें दो सेंटेंस आपके मर्ज हैं। फर्स्ट है, एक तो आई डू नॉट से आ रहा है, दैट इज द असर्टिव ऑफ नेगेटिव, एंड गो अवे एज अ इम्पेरेटिव। तो देखिए इसकी क्या फॉर्मेशन होगी, द टीचर सेड दैट, फर्स्ट तो हमारा असर्टिव है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। द टीचर सेड दैट, आई को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू टीचर, according to subject of reporting verb. The teacher said that he did not wish to see any of। अब you देखिए, you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के। ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन के किसी भी प्रोनाउन को एज्यूम कर लेंगे। हम यहाँ पर चाहें तो अस लिखें या फिर मी लिखें, बोथ विल बी करेक्ट। अब आगे का सेंटेंस क्या है, गो अवे, इम्पेरेटिव है तो हमने कनेक्टिव वर्ड दैट एंड को यूज किया, और यहाँ पर गो अवे से पता लग रहा है कि टीचर ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑर्डर्ड टू गो अवे। कनेक्टिव वर्ड यहाँ क्या यूज हो गया, टू, एज अ इम्पेरेटिव में होता है। नेक्स्ट नंबर 7, शी सैड हुर्रा वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। तो हुर्रा से हमें पता लग रहा है एक्सक्लेमेशन है और जॉय की बात हो रही है, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, वी को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू शी, दैट शी हैड वॉन द क्रिकेट मैच। नंबर 8, शी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या हो जाएगा, शी विश्ड, गॉड से ब्लेस कर रहे हैं तो विश्ड की बात हो गई। आपको बताया था विश्ड है, कर्स्ड है, प्रेड है, थैंक्ड है, ऐसे वर्ड का हम यूज करते हैं एज ए रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी विश्ड दैट, कनेक्टिव वर्ड हमने दैट यूज किया, फिर इसके आगे का पार्ट हमारा असर्टिव में बनेगा, उसके लिए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट है गॉड और मे को कन्वर्ट कर दिया माइट में। माइट भी हमारी एक मॉडल वर्ब है इसीलिए इसके ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, गॉड माइट ब्लेस मी या फिर अस, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है जो हम यू के अकॉर्डिंग चेंज करते, तो वहाँ पर हम क्या है, फर्स्ट पर्सन को एज्यूम करेंगे। बेसिक ट्रिक ये याद रखिए कि यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एज्यूम कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई या वी को देखते हुए आप किसी भी एक को यूज करिए। नंबर 9, द पेशेंट सेड डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज। प्लीज से आप समझ पा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, द पेशेंट रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू एंड हिज पेन। तो हमने माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिज। नंबर 10 इज द टीचर सेड टू राम ब्रेवो यू हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। तो अब ब्रेवो से ही क्या हो रहा है कि टीचर अप्लाउडेड कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं। द टीचर अप्लाउडेड राम दैट ही हैड ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स। Number 11, Manju said, how clever I am. Manju exclaimed with surprise that she was very clever. तो ये आपके टोटल सॉल्यूशन रहा टेस्ट का, आप इसको प्रॉपर कीजिएगा नोटबुक पर। कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से जितने भी रूल्स अब तक हमने असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, सभी की सारी रूलिंग्स को एक चार्ट में हम किस तरह से मेमोराइज कर सकते हैं उसकी एक क्लास हम कर लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि 2-3 दिन का मैं टाइम आपको दे रही हूँ, इस बुक को आप अरेंज कर लीजिए ताकि हम लिटरेचर पार्ट को भी स्टार्ट कर सकें। एक टॉपिक ग्रामर में पूरा हो, फिर एक पार्ट हमारा लिटरेचर में भी चलता रहे ताकि आपको
उसके रूलिंग्स को मेमोराइज करने का गैप मिल जाए। ओके क्लास, तो जैसे ही आपके पास ये बुक अवेलेबल हो जाती है, मुझे इंडिविजुअल ग्रुप नहीं, इंडिविजुअल नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ कितने स्टूडेंट्स के पास ये बुक अवेलेबल हो गई है। जैसे ही नंबरिंग से मुझे लगेगा कि हाँ ये बुक प्रॉपर आप अरेंज कर पा रहे हैं, तो हम इस लिटरेचर सेक्शन को भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए लिटरेचर की कॉपी तो आपकी अलग बनेगी, आपको क्लास में ही बताया गया था। इसका पूरा एक इंडेक्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, जितने भी कंटेंट मैंने आपको बता दिया, इससे अलग कोई कंटेंट नहीं है। हमें ज़्यादा इसमें एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। हम टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न रहे, चाहे वो पेंडेमिक के थ्रू रहे या ऑनलाइन की वजह से, हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि बहुत स्पीडली जो कहा जा रहा है उस चीज़ को फुलफिल कीजिए। क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी, कहीं किसी भी दिन कोई ब्रेक नहीं होने वाला है। हाँ, पर डे जितना बताया जाए उतना आप करिए। में फर्स्ट लेसन के तो अभी नहीं स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेज पर ये पूरा कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा, और जो जो कंटेंट होता जाए एज अ इंडेक्स, आप जानते हैं किस तरह से बनाना है, आपको क्लास में बताया भी गया था, बिल्कुल वैसे ही आप ये इंडेक्स प्रिपेयर कर लीजिए लिटरेचर में। और ग्रामर सेक्शन में ये जो आपका सॉल्यूशन पूरा मैंने दिया है टेस्ट का, उसको नोट डाउन कीजिएगा। और कल का जो पार्ट रहेगा वो एक पूरे टेबल का रहेगा, सारे रूल्स को हम समराइज करेंगे, और फिर उसके बाद आपका नरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।